Good morning, students. Today I am here with a new chapter, chapter number 2, A Gift of Chapel of class 7. So, first of all, we will discuss about the main characters of this chapter. So, in this chapter, the main characters are Mridu, a young boy, his grandparents Tapi and Tata, his cousins, his aunt Rukumani, his cousins Ravi, Lali, Meena are his cousins. A beggar, एक beggar है वो भी यहाँ पर है. These are some of the main character of this story. And the summary of this story is like that Mridu was a young girl and she went to his aunt's place, that is Rukumani's place, with his grandparents to live, to enjoy her holidays, where she met with her cousins like Ravi, Lali and Meena, and they enjoyed there very much. And her cousins bring her to their backyards, where they found a kitten in a torn football. जहाँ पर वो उसको मृदु को एक किटन, छोटा सा जो बिल्ली का बच्चा था, वो दिखाते हैं जो कि फटी हुई फुटबॉल के अंदर उन्होंने छिपा के रखा था. दे हाइड दिस किटन फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स बिकॉज दे रिफ्यूज टू कैप इट विद देम, क्योंकि ग्रैंड मदर, स्पेशली देयर ग्रैंड मदर, वॉज वेरी सस्पिशियस अबाउट दिस kitten, that from where they fed him or from where they get milk to feed this kitten. So they hide this kitten from their parents. And Lali, one of her cousin, was sitting with his music teacher, who was a bal and have a fringe or tail on his head, जो कि ऊपर से बाल नहीं थे और एक छोटी सी टेल लगी हुई उनकी एक चोटी थी म्यूजिक टीचर्स की. एंड सडनली अ बैगर कॉल फ्रॉम आउटसाइड फॉर समथिंग टू ईट एंड रुकुमनी rebuked him to go somewhere else. जो आंट थी मृदु उस बैगर को बोलती कहीं और जाकर तुम अपना खाना लो, तुम रोज यहीं क्यों आते हो. बट द चिल्ड्रंस felt very sorry about it. उनको ये देखकर बहुत दुख होता है. द बैगर sat in shelter of a tree there. उन्हीं के आंगन के एक पेड़ के नीचे बैगर बैठ जाता है. एंड द चिल्ड्रन सॉ द ब्लिस्टर्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे. सो दे विश दैट दे हेल्प हिम बाय गिविंग हिम चप्पल. सो वो सोचते हैं काश हम इसको एक चप्पल दे पाते. सो दे पुट अ ओल्ड चप्पल फ्रॉम देयर होम एंड गेव हिम and asked to go from here. वहाँ से जाने के लिए पुरानी चप्पल देकर उसको वहाँ से जाने के लिए उसको रवाना कर देते हैं. Then after Rukumani rebuked him for their word, but they felt happy by doing this thing. So like this chapter has gone. So starting from the first line, smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. So Rukumani, aunt of Mridu, so when Mridu went with his grandparents to his aunt's place, Rukumani, his aunts welcomed them. Rukumani दरवाज़ा खोलती है and her cousins Ravi and Meena दोनों दौड़ करके बाहर आते हैं. and Ravi pulled Mridu into the house, और रवि मृदु को घर के अंदर खींचकर ले जाता है. Wait, let me take off my slippers. So मृदु बोलती है रुको मुझे अपने स्लीपर्स पहले खोलने दो. Protested मृदु. She sat them out neatly near a pair of large black ones. और वो बाहर जो बहुत बड़ी दो चप्पल ब्लैक कलर की खुली हुई रहती है उनके पास जाकर अपनी स्लीपर्स खोल देती है. Those were grey, actually with dust. और उसकी जो चप्पल्स होती है कौन से कलर की होती है? ग्रे कलर की होती है, जिस पर बहुत सारी मिट्टी ऑलरेडी लगी होती है. सो दिस इज द scenario when Mridu went to his aunt's Rukumani's home with her grandparents. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scarred. So you could see, उन चप्पल्स पे आप निशान देख सकते थे. आराम से पैरों के निशान जो छप चुके थे वो आराम से देख सकते थे. टोस के ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर
आगे 2 के निशान आराम से नजर आ रहे थे। दैट मीन्स दैट स्लीपर्स वर ओन वंस। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कर्वी, बहुत ही बड़े थे, लंबे लंबे थे और बहुत ही अजीब से वो निशान नजर आ रहे थे उन दोनों चप्पल्स पे, उन दोनों स्लीपर्स पे। सो दैट Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to backyard behind a thick bitter berry bush. So मृदु को ज़्यादा समय नहीं मिला ये देखने के लिए कि किसकी चप्पल है, क्योंकि रवि उसको खींच करके अपने घर के पिछवाड़े में ले गया जहाँ पर एक बैरी बुश, एक झाड़ी लगी हुई थी बैरी की। These there inside a torn football lined with a shaky ground filled with the sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. और वहाँ पे जाकर उसने क्या देखा है, टॉर्न फुटबॉल। इन अ टॉर्न फुटबॉल, एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर एक छोटा सा किटन बैठा हुआ है और उसके अंदर कोकोनट शेल के अंदर आधा कोकोनट शेल भर करके उसमें दूध रखा हुआ है जिसको वो पैक करके पी रहा है। So they move for backyard of their house and Mridu saw a kitten there and become happy to see that thing there. So as we move further, we found him outside the gate this morning. He was moving and moving. Poor thing, said Meena. मीना मृदु को बताती है कि हमें ये कल आज सुबह घर के बाहर दरवाजे के बाहर मिला जहाँ पर वो म्यूविंग कर रहा था, म्याऊ म्याऊ कर रहा था। इट्स अ सीक्रेट, लेकिन ये तुम किसी को बताना नहीं क्योंकि ये इट्स अ सीक्रेट, ही हमने सबसे छिपा के रखा हुआ है। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पादू मामा's house if she knows we have a cat. पार्टी मीन्स ग्रैंडमदर। सो अम्मा बताती हैं कि अगर आपको इस किटन के बारे में पता चल गया तो अम्मा जो है वो घर छोड़कर अंकल के घर पे रहने के लिए चल जाएगी। इफ वी न्यू अबाउट दिस किटन, पादू मामा के घर पे वो रहने के लिए चल जाएगी, हम सबको छोड़ देगी। सो पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर। सो हियर those children Mridu and Meena discuss that people are always telling us to be kind to the animals. लोग हमेशा हमको ये बताते हैं कि हमें जानवरों के प्रति काइंड होना चाहिए। We should always kind for the animals but when we are, लेकिन जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं एनिमल्स के लिए, they said that oh don't bring that dirty creature, इस गंदे से जानवर को यहाँ लेकर मत आओ, sad। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? क्या तुमको पता है इसके लिए थोड़ा सा मिल्क किचन से लाना भी हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। Pati saw me with a glass in my hand just now, and Pati saw me, Pati मुझे देखती है, हाथ में मैंने ग्लास लिया हुआ होता है। Then as we move further, it turns and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. So Meena described Mridu again that I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the. मुझे ये जो कोकोनट शेल है वो फटाफट से जाकर दौड़ करके रख के आनी पड़ेगी, धो करके and put it before she got really suspicious. इससे पहले कि अम्मा को, ग्रैंडमदर को थोड़ा भी शक हो, मुझे फटाफट से जाकर ये कोकोनट शेल को धोकर रखना पड़ेगा। Now we have to think of some other way to feed महेंद्र। अब हमें महेंद्र को खाना खिलाने के लिए फीड करने का कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। महेंद्र, this little kitty's name is महेंद्र। मृदु was impressed। तो मृदु बड़ा इम्प्रेस होकर बोलती है इस छोटे से किटन का नाम महेंद्र है। It was a real name, not just a cute। आगे वो बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, इवन कि बहुत ही
अनोखा नाम है जो पहली बार मैं सुन रही हूँ, महेंद्र। Actually, his full name is Mahendrama Pallava Punia, MP Punia for short, if you like. So Meenu explained him that actually इसका पूरा नाम जो है वो है महेंद्रमा पल्लवा पूनिया, एंड और जिसको हम शॉर्ट में MP पूनिया भी बोल सकते हैं। He is a fine breed of cat. ये कैट की बहुत ही अच्छी ब्रीड है। Just look at his fur like a lion's mane. देखो इसके जो फर हैं वो कैसे हैं, बब्बर शेर के जैसे। And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? और तुम्हें पता है जो पल्लवा किंग्स का जो एम्बलम होता था वो क्या होता था? He looked expectantly at मृदु, और बड़े ही उसको लग रहा था कि उसको जवाब शायद मृदु से मिल जाएगा। प्रश्नवाचक आंखों की निगाहों से वो मृदु को देखती है। So मृदु मृदु धीरे से बोलती, धीरे से हंसते हुए बोलती है, Think I'm joking. Well, just wait. I will show you something. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabaleshwaram, have you? He said mysteriously. तो उससे पूछती है कि क्या तुम कभी महाबलेश्वरम गए हो? Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of this. His Thatas, etc. So वो बोलती है जब मैं महाबलीपुरम गए थे तब हमने स्टैचू देखी थी जो कि इस किटन के थाता मीन्स ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर की वो स्टैचू थी जो कि इस किटन, इसलिए हम इसका नाम हमने महेंद्रन रखा है क्योंकि जो स्टैचू थी वो एक कैट की थी, बहुत ही बड़ी थी जो कैट उसकी थी, और हो सकता है वो कैट की स्टैचू जो ये महेंद्रन है इसके ग्रैंडफादर की हो। फैक्ट इज महेंद्र हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। जो मुद्दे की बात वो ये है कि जो महेंद्रन है ये उसी कैट का कोई वंशज है, अ क्लोज रिलेटिव। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डेंसिटी। ये जरूरी पल्लवा एम्बलम की डेंसिटी को बिलोंग करता है। Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. जो रवि था वो उस झाड़ी के आसपास घूम रहा था और अपनी चमकती हुई आंखों से उसको बड़े ही चमकती हुई आंखों से उसको गौर से देख रहा था। Then this cat is a descendant of none other than Mahabalipuram ऋषि कैट। ये जो कैट है उस कैट को देखते हुए वो बोलता है ये किसी और की नहीं बल्कि मैं महाबलीपुरम के ऋषि इस कैट की डिसेंडेंट है, उनकी वंशज है। डिसेंडेंट हियर मीन्स वंशज। एंड इफ आई कैन जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, और मैं अगर तुम लोगों को याद दिलाऊं तो हमें पता है एंशिएंट इजिप्ट में कैट्स को पूजा जाता है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लोग, मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखती हैं। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु बोलती है अब हमें क्या किया जाए, आगे हमें अब क्या करना चाहिए। So a smiling Rukumani threw open the door. Oh sorry, it's coming from that. Just wait for a minute. I'm telling you this cat is descended from the Egyptian cat. Wow, no goddess is bastard. Yeah, that's it. So बोलता है कि ये जो कैट है वो इजिप्शियन कैट है, इजिप्शियन भगवान की डिसेंडेंट है और ये मैं पक्का बोल सकता हूँ। Well, one of the descendant of that cat goddesses was a stowaway in one of the Pallavas ship. तो वो आगे फर्दर वो बोलता है कि इसी तरह की इसी कैट की वंशज थी जो कि पल्लवा किंग के डिसेंडेंट थी, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द
महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendant was this cat, जिसकी वंशज ये महेंद्रन है, जिसको हमने यहाँ पर जिस किटन को यहाँ पर हमने हमारे साथ में रखा है। रवि फ्लरिश्ड हिज twig at महेंद्रन, रवि महेंद्रन की तरफ जो हाथ में उसने ट्विग ली हुई थी, छोटी सी पतली सी छड़ी ली हुई थी, उससे इशारा करते हुए बोलता है एंटीगोनिया हियर, वो एक उसको प्रोवोक करते हुए उसको बोलता है। महेंद्रन looked up, जो महेंद्रन थी वो रवि की तरफ ऊपर देखती है। अलार्म, he had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, और उसने अभी अपने पंजे कोकोनट शेल से तीखे किए थे। But worse than Ravi's awful move, it was a screech from the window, तभी उनको एक आवाज खिड़की से सुनाई देती है। screech sound comes from the window and all the children move from there. What a weird sound, कितनी अजीब सी, weird means अजीब सी आवाज है। If Mradu was startled, Antigonia was frightened out of his wits. Here standing on and he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to the draw. So अगर वो जोर से चीखता तो महेंद्रन डर जाता, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल के जाता है। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he over miserably, और उसको एक ट्रे में किटन को छिपा करके उसके ऊपर रेड चिलीज से उसको ढक के चले जाता है, और किटन वहाँ से आवाज निकालता है meow. He started mewing there. So as they move forward, the creaking went on and on. What is that noise? said Mradu. तो मृदु बोलता है कि ये creaking sound कैसी है? That's Lali learning to play the violin. रवि बताता है ये आवाज लाली की थी, जो कि वायलिन प्ले करना सीख रही है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whistling on and on, while Lali is all the time drilling, going completely off track. So वो बोलता है कि लाली कभी भी वायलिन बजाना नहीं सीख पाएगी, क्योंकि जो म्यूजिक मास्टर है वो ऐसा लगता है जब वो सिखाता है वायलिन की जैसे कोई ट्रेन चल रही है, और लाली बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक उसको फॉलो करती है, उसको बजाती है। Then this is the first part of this chapter, and we will conclude this chapter in the next slide, in the next story. So hope you understand this chapter. यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, and try to read this chapter again and again. This is a very interesting story about a kitten and the children. Thank you very much. See you in the next slide.